सबसे पहले आपने क्या देखा, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है ना? सो दिस वाज अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू, दैट व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना? स्लोप ऑफ लाइन आपने देखा कि इट इज व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन, इंक्लिनेशन होता है, या आप बोल सकते हैं इसे राइज और फॉल ऑफ एनी लाइन। तो ये होता है आपको, हमने ये तो मैंने शायद आपको पढ़ाया था, that is the angle which this line makes with the positive direction of x-axis and measured anti-clockwise. So, and if this inclination is theta, अगर inclination आपका theta है, voice clear नहीं है तन्मय? I think the problem is from your side. What about others? Can you hear me? Okay. Hitesh is saying it is clear. Adyansh, what do you say? Ambika, clear है क्या बेटा आवाज? Please assure me about the voice quality so that I can continue. Okay, clear. Clear, ma'am. Okay बेटा, ठीक है। तो आपने तन्मय एक बार हाँ वापस से ज्वाइन कर लो। So you have seen that slope of line is given by m, and m is the slope of this line given by m is equal to tan theta. Tanmay, now is it clear? तो ये हमारा tan था, tan theta. Okay. Now you have seen different formulas to find the slope and equation of any line. ठीक है? तो अब मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ. So slope of any line, slope of any line which is making an angle theta with x-axis is given by what? Hitesh. Slope of line if angle theta is given. Hitesh, what do you say? Hitesh is not there. वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा ही हुआ है सामने, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस? परिधि, व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस? ये जो x एक्सिस है आपका, इसका स्लोप है क्या कुछ? व्हाट इज इट्स स्लोप? कहाँ चले गए आप लोग सब? देखो x एक्सिस ये है, हाँ ठीक है, वेरी गुड आबिद, इट विल बी 0, है ना? एंड व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ y एक्सिस? स्लोप ऑफ y एक्सिस विल बी, वेरी गुड तन्मय, ध्यान चुके, यू कैन नॉट डिफाइन दैट, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज उस केस में आपका एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा है ना? और tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके, गुड, वेरी गुड आकांक्ष तन्मय. Now, slope of line when coordinates of any two points. अगर आपके पास में कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, x1, y1 और x2, y2. So, slope of any line passing through these two points will be what? Tan theta is equal to कितना होगा? Slope of a line passing through any two points. Very good, Tanmay. It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, shabash Adyansh. So this was slope of any line passing through two points. ठीक है? Now tell me one thing, अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, if any two lines are parallel, then what is the relationship between their slopes? Okay, Shabash, Hitesh, Adyansh, Abid. Okay, very good. So if any two lines are parallel, then their slopes are also
equal, that is m1 is equal to m2. Very good. Okay, now what if the lines are perpendicular? Okay, shabash Adnan. If lines are perpendicular, then the product of their slopes will be equal to -1. उनका slopes का product होगा -1. Okay, shabash. What about others? सबको याद है? अगर आप चाहें तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, है ना, अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स में एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. नाउ next thing is, if you want to show that any 3 points are collinear, which points are A, B or C, if you want to show that these 3 points are collinear, then how you will show? Using the concept of slope. स्लोप के कंसेप्ट से कैसे बताएंगे? That these points are lying on the same line. अंबिका, चेतन, चेतन गुप्ता, कैसे बताएंगे कि these 3 points are lying on the same line? Yes, अंबिका, how you will show? Using the concept of slopes, that these points are lying on the same line. देखो ऐसे आप लोग जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाओगे? Before coming to the class, okay, very good Tanmay. Slope of AB is equal to BC is equal to AC. बहुत बढ़िया बेटा, सब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो स्लोप्स तो बराबर होंगे ही ना बेटा. सी, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए. So just like that, before coming to the class, please go through all the topics that we have discussed in the previous classes. तभी आपको कंटिन्यूटी होगी तो समझ में आएगा. Okay? So, if these 3 points are collinear, then the slope of AB will be equal to slope of BC is equal to slope of AC. Okay, in this way you can show that these 3 points are collinear. ठीक है? So, this was about how to find the slopes in different conditions. Now come to the equations of lines. Equation of lines हम कैसे निकालेंगे? अलग-अलग given conditions में. So, first is point slope form. अगर आपको दिया हुआ है, एक तो आपको दे रखा है स्लोप और एक दे रखा है पॉइंट from this line, from which line is passing through. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था आपका? पॉइंट स्लोप फॉर्म एनीबडी एल्स? केवल अध्यांश पढ़कर आया है, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए? इशिता, कार्तिक, यस अध्यांश, यू आर करेक्ट बेटा, वेरी गुड. चेतन गुप्ता, इशिता, ओके अंबिका, करेक्ट. It is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, ये है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म. एंड व्हाट अबाउट 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म का आपने देखा ही था कि आपने कैसे निकाला था उसका स्लोप. सो y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to m into y minus y1 upon x minus x1. Okay? So this was the 2 point form. अगर आप लोग चाहें तो सारे फॉर्मूले एक साथ में लिख सकते हैं. Okay?
So this is your 2-point form. Then you have slope intercept form. You are given the slope and the intercept cut on the axis. Slope intercept form का मतलब है कि आपको कोई लाइन दे रखी है और उसका जो इंटरसेप्ट कट किए हैं उसने वो दे रखा है। तो ये क्या था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं आपने जो बताया बेटा उसके अंदर क्या है, ये वाली लाइन है जो दोनों ही एक्सिस पे कट कर रही है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने क्या बताया बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन दिस लाइन कट्स both the axes at some point A0 and 0B है ना, ठीक है। ओके, वेरी गुड रोहन, तन्मय, आद्यांश। सो इट इज इक्वल टू y is equal to mx plus c, क्योंकि ये किससे पास हो रही है आपकी, तन्मय एक बार आप वापस से देख लें ना, ठीक है, जो आपने इक्वेशन बताई इज इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, इसका आंसर ऑलरेडी तन्मय दे दिया है कि when the line makes intercept cuts on both the axes at points A0 and 0B, then equation of such line is given by x upon a plus y upon b is equal to 1, और इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं ना, ठीक है। तो कितने फॉर्म याद हो गए आपको, एक तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1, then we have 2-point form y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to m into y minus y1 upon x minus x1, ठीक है। then we have slope intercept form y is equal to mx plus c, then we have intercept form that is x upon a plus y upon b is equal to 1, ठीक है। अब आपके कौन कौन से फॉर्म बचे हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्म बचा है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या था आपका, नॉर्मल फॉर्म आपका हमेशा बड़े क्वेश्चंस में आता है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपको एक लाइन दी है, ऐसे एक लाइन दी थी, अब इस लाइन का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है आपको क्या दे रखा है, p, ठीक है। और क्या लिखे रखा होता है, द एंगल व्हिच दिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय व्हाट, ओमेगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, कौन सा फॉर्म होता है इसमें, आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता है। कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म था ये, सब भूल गए, वेरी गुड तन्मय, सो इट वाज okay, good Adyansh, so this was your normal form of equation of line, ठीक है। और क्या निकाला था ये आपने, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, ठीक है। सो दिस वाज, याद है कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा is equal to p, ये थी हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो एक बार आपका थोड़ा सा माइंड जो बोलते हैं ना बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज, तो आप लोग ऐसे वार्म अप करते हैं, तो वैसे आपका माइंड वापस से
it has started thinking about the different forms of this straight lines, है ना? So now we will come to the very important this part of this chapter, that is miscellaneous examples जो हैं आपके इस चैप्टर के, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एक बार miscellaneous examples कर लेते हैं, ठीक है? So all of you open your textbook and page number 228. 228 page का order. And now see miscellaneous example 20. So here you are given that if the lines किसका माइक ऑफ नहीं है, ऑफ करो. So if the lines 2x plus y minus 3 is equal to 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0, and 3x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent, find the value of k. तो अगर ये तीनों लाइन आपकी कंकरेंट हैं, मान लो ऐसे कुछ है तीनों लाइंस, कंकरेंट मींस intersecting, passing through the same point, isn't it? क्या होती है concurrent lines? What are concurrent lines? Concurrent lines are those lines which are passing through the same point. Okay, शाबाश तन्मय. तो ये तीनों लाइंस हमने आपको क्या बताया, एक हिंट दिए कि these three lines are concurrent, तो आपको निकालना है what is the value of this k. तो अगर ये तीनों लाइंस हमारे concurrent है तो हमारे माइंड में एक आइडिया तो आता है कि एक ही इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर आपको एक वेरिएबल दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k. सो इट मींस इफ वी फाइंड एनी पॉइंट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो वो पॉइंट को इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा, इजंट इट, है ना? तो हम क्या करेंगे, वो कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे एंड देन दिस विल सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन आल्सो. ओके, सो यू टेक एनी टू इक्वेशंस, इससे आपका वेरिएबल नहीं है तो हम वन ऑफ दीस ले लेंगे, फिर पॉइंट निकाल लेंगे और फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना? ओके, शाबाश आद्यांश. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग आप लोग भी सॉल्व करके बताओ कैसे पॉइंट इक्वेशंस 1 and 3. ठीक है, तो हमारे पास में 2x plus y is equal to 3 और 3x minus y is equal to 2. ठीक है, तो कितना आ गया, 5x is equal to 5 और x is equal to 1. तो y कितना आया, पॉइंट क्या आया आपका, दूसरा पॉइंट क्या आया, ओके 1 1 ही आया दोनों. सो x is equal to 1 and y is equal to 1 आ गया. ओके, सो इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 1 means it will satisfy the third equation also. Okay, so you can write a line as lines are intersecting. So this point will be satisfied by the third equation also. Third is the second equation. So it will be 5 into 1 plus k into 1
minus 3 is equal to 0 और k is equal to कितना आ गया आपका -2. ओके गुड, निकाल दिया. सो फाइनली यू गॉट k is equal to -2. तो हो गया. बहुत इजी क्वेश्चन था ना, है ना, निकालना एकदम इजी था कि आप लोगों ने बस कंकरेंट लाइंस का कंसेप्ट को यूज कर लिया कि इफ दीज लाइंस आर कंकरेंट दैट मींस दे ऑल आर इंटरसेक्टिंग एट एनी वन पॉइंट. सो यू कैन सॉल्व एनी टू इक्वेशंस जिसमें आपका वेरिएबल नहीं था, जिसमें आपको कांस्टेंट नहीं दे रखा था, तो आप उसमें इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू एग्जांपल 2. Example number 21 is find the distance of the line 4x minus y is equal to 0 from the point 4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ फिगर बना लेते हैं इसका, है ना. तो क्या बनेगा हमारा रफ फिगर? देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0. मीन्स ये है आपकी लाइन y is equal to 4x की. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 21. ठीक है, तो y आपका क्या हो रहा है? x से 4 टाइम्स आपका बढ़ रहा है. मीन्स ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जा रही है. So find the distance of this line from the point 4, 1. Above 4, 1 means 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर लाइन होगा x4 है, y आपका 1 है, 1, 2, 3, 4. तो means it will be somewhere here. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? हम तो निकाल लेंगे डायरेक्टली, हमें तो एक फॉर्मूला पता है. कौन सा फॉर्मूला पता है? अब आप बोलोगे कि मैं तो यहाँ से इस लाइन पे से मतलब लाइन ऐसी थी, तो इसके से मैं तो यहाँ पर एक पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन डाल दूंगा और परपेंडिकुलर लाइन डाल के जो अपना फॉर्मूला भी है आपके पास में, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यूज कर लेंगे क्या उसे? व्हाट यू से? ये वाला मेथड यूज कर लेंगे क्या इसमें? ये कुछ पॉइंट रह गया है हमारा. See, when you will read this question again, it is given that you have to find the distance of this line from the point measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis. हाँ ध्यान, very good. तो हमारा एक पॉइंट रह गया था because this point is measured along this line. ऐसे कुछ एक लाइन थी जो 135 डिग्री एंगल बना रही थी, है ना. तो वो लाइन मान लो हमारी कुछ ऐसे आई और ये क्या है, यहाँ पर 135 डिग्री एंगल बना रही थी वो एक्स एक्सिस के साथ में. ठीक है, तो अब आप लोग निकाल तो सकते हो वैसे इस लाइन का डिस्टेंस. बताओ कैसे निकालोगे? अब क्या करोगे? एक काम कर सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से यूज करके निकाल लेंगे, है ना. तो उसके लिए क्या है, एक चीज आप नोट करोगे कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल दे, इसको मान लो हम लोग L1 लेते हैं और इसको L2 लेते हैं, है ना. तो अगर हम इस इक्वेशन जो लाइन अपनी L2 है इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं तो हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन हो जाएगी. देन वी कैन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इजंट इट? तो कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कैसे निकालेंगे? आपको
आपको एक पॉइंट दिया है थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग एंड ऑल्सो द एंगल विच इट इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. स्लोप ऑफ 12 स्लोप आ गया क्या आपका इसमें? ऐसे नहीं कर सकते, देखो इसको. अच्छा एल टू लिख रहा है, ओके ओके, वेरी गुड. हाँ, तो स्लोप ऑफ एल टू पहले आप निकालेंगे, ठीक है. वो होगा tan 135 है ना, तो अलग से निकालेंगे. tan 135 कितना होगा? मीन्स tan 90 प्लस 45. tan 90 प्लस थीटा मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड में. वेरी गुड. इट विल बी tan 90 प्लस थीटा, तो पहले कॉट में रहेगा, है ना. तो उसका मतलब कॉट 45 लेकिन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में आपके tan कॉट नेगेटिव होते हैं ना. सो इट विल बी -1. ओके, so it is equal to -1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है. अब आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आई? So this y minus 1 is equal to -x plus 4 or y plus x is equal to 5. तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये ऑलरेडी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे पॉइंट बताओ. Solve these two to get this point. So P2 ले लेते हैं. Now tell me. अच्छा 1 4 आ रहे हैं. ओके, वेरी गुड. तन्मय, अध्यांश. So this point आपके पास में आ गया 1 4. Now you can easily find the distance between this and this. You can find out distance use line से. ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर निकाला जिसने. सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ठीक है. ओके ओके, सो इट इज √18 और 3√2 है ना. ठीक है. अदर्स ऑल्सो फाइंड दिस. बाकी लोग भी अपने आप निकाल लें इसे, ठीक है. ओके, गुड. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और आपको पहले उनको कूल माइंड से सोचना है कि कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद में ही स्टार्ट करना है सॉल्व करना, है ना. ठीक है. डायरेक्टली तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि अरे वाह हमें तो ये पॉइंट दिया है, हमें ये लाइन दी है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा between a line and a point और directly you will get the answer, है ना. लेकिन हमें इसको बार बार पढ़कर देखना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है एंड हाउ टू सॉल्व इट. ओके, ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 22 इज so it is assuming that straight lines work as the plane mirror for a point. Find the image of point 1 2 in the line x minus 3y plus 4 is equal to 0. Okay, so मान लीजिए हमारे पास लाइन है
एग्जाम्पल 22। ठीक है, तो मानो हमारे पास ये लाइन है x माइनस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वो क्या बोल रहे हैं कि assume that this straight line work as a plane mirror, it is working as a मतलब ऐसे कुछ plane mirror है। Find the image of point 1 2, इसकी image जो है image of point 1 2 in this line x minus 3y plus 4 is equal to 0। अच्छा, इसमें इन्होंने एक हिंट आपको दे रखी है that this line is considered as a plane mirror। तो आपको एक बात याद होगी कि जो प्लेन मिरर होता है वो आपका जो इमेज जो है वो सेम ही डिस्टेंस में बनाता है ना। सो इमेज विल बी एट द सेम डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर अगर इमेज बनाना है इधर एक्स के, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना आपका ये एकदम सेम होगा। तो मान लो हमने इसे ए लिया है, इसे बी लिया है और इसे सी लिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सी जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। इसका अपने टर्म्स में लिख लेना एक बार, है ना, एज इट इज अ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर विल फॉर्म इमेज एट द सेम डिस्टेंस, है ना, जितना उसने 1 2 इधर था। ओके, तो क्या है कि अब हमने निकाला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एक्स के में, मतलब पॉइंट ए हमें निकालना है। ठीक है, तो उसका मतलब ये एक चीज और है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर रहेगी लाइन। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये तो आपका 90 डिग्री होगी इससे। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें मिली। एक तो ये मिला है कि एस दिस लाइन ए बी सी है, इसको नाम दे देते हैं डी और ई देते हैं। सो व्हाट यू से these two lines are perpendicular, इसको कहीं यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों के स्लोप का क्या होगा, स्लोप के बारे में कुछ, स्लोप ऑफ AB into स्लोप ऑफ BE जो है आपका माइनस होगा, है ना। तो स्लोप आप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के जल्दी से मुझे बताओ कि क्या इक्वेशन आ रही है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 इंटू स्लोप ऑफ डी क्या होगा, यहीं से निकाला था इसे dy इज इक्वल टू x प्लस 4 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होगा। उसका मतलब इसके अंदर है आपकी स्लोप जो है वो 1/3 है ना। अब इसे HRT के फॉर्म में भी इक्वेशन मिल जाएगी आपको। क्या मिली है, निकाला किसने, आई डोंट नो बुक में इस मेथड से किया है या नहीं। यस, सो 3h प्लस k इज इक्वल टू 5 आई है ना। आप लोग निकाल लेना, बस टाइम भी शॉर्ट है आपका। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन का आपकी ये आ गई। ठीक है, अगेन दिस C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब क्या होगा आपका कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h plus 1/2 है ना। सो कोऑर्डिनेट्स और कौन सा पॉइंट है C आर कितना देंगे, h plus 1/2 और k plus 2/2। ठीक है,
So it means if coordinates of C are this, that means this coordinate will also satisfy this equation of line, that is x minus 3y plus 4. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट सम इक्वेशन, है ना, निकाल कर बताएंगे मुझे कितनी आ रही है। चलो अटेंडेंस भी ले लूं आप लोगों की। कैन एनीबॉडी टेल मी। तो आपकी बुक में इक्वेशन दी है, इट इज h माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस, जब आपने पुट किया x की जगह पर क्या पुट करा आपने, h प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू k प्लस 2/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में इक्वेशन आई h माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस। अब आपके पास में दो इक्वेशंस है, तो ये वाली और एक ये वाली। ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व दीस टू यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट व्हिच इज द मिरर इमेज, जो उसकी है उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद वापस मैं आपको बता देती हूँ। सी इसमें आपको क्या दिया था, दिस इज एनी लाइन जिसे आपने प्लेन मिरर की तरह माना है, और इधर एक पॉइंट 1 2 है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी वो आपको पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इधर हमने एक कंसेप्ट यूज करा है कि प्लेन मिरर की इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पर ही बनती है ना। सो वी हैव टेकन एनी पॉइंट A, let its coordinates be hk and this is the image of this B। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सेम डिस्टेंस पे बनना है, तो दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ दीस टू। सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट, है ना, आपने एक इक्वेशन निकाल ली, और दूसरा आपने क्या करा कि ये जो है दोनों ही लाइंस जो है आपकी परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू -1। So you will get two equations in terms of h and k, and then you can solve them mutually to get the values of this h and k। ठीक है, तो पहले अटेंडेंस ले रहे थे। Yes, so Adhyansh is present. Just wait. Okay, Adhyansh. Ma'am. Aman. आयुष, चेतन गुप्ता, अब ये कहाँ चला गया, इशिता, Present, ma'am. कार्तिक वर्मा, प्रेजेंट मैम।